Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. Today we are going to study about the basic model. Like we have already studied about the basic model of the working of the nervous system and the basic model of the working of the endocrine system. Now today we are going to study about the nervous system and what it comprises of, what are the components of the nervous system, and uh, actually there are two components of the nervous system. One is the central nervous system and the other one is the peripheral nervous system. The central nervous system actually it comprises of the coordinators. Body के coordinators कौन है? Body के coordinators हैं brain and the spinal cord, and the two kinds of two part sorry two types of nervous systems are there: brain, the central nervous system CNS, and the peripheral nervous system which is the PNS. CNS के अंदर तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं दे कंटेन नर्व्स. कौन सी नर्व्स होती हैं इसके अंदर? the nerve which arises from the central nervous system and spread in different parts of the body. See, the brain and the spinal cord, this is the center. ये main वाला हमारा nervous system है actually. and many peripheral का मतलब होता है, peripheral areas हमारी body के कौन से होते हैं? the arms and the foot, यानी जो एंड के एरियाज होते हैं हमारी बॉडी के. तो जो मेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इट इज़ एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ इट इज़ actually a network of neurons and it's a network of nerves. और वो बनता किससे है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये नर्व्स एराइज होती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये जाके स्प्रेड हो जाती हैं. वाई? क्योंकि इन्होंने रिसीव करने होते हैं इम्पल्सेस और इन्होंने सेंड करनी होती हैं इम्पल्सेस. Nerve cells or neurons. The nerve cell or neuron is the unit of the nervous system. The human nervous system consists of billions of neurons plus supporting neuroglial cells. Neurons are specialized cells that are able to conduct nerve impulses from the receptors to coordinators and from coordinators to effectors. इनका काम क्या है? ये सेंसरी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनसे ये मैसेजेस लेके भेजते हैं कोऑर्डिनेटर्स में, और फिर कोऑर्डिनेटर से ये भेजते हैं इफेक्टर्स को. इनका ये काम होता है. और हमें अब इसकी स्ट्रक्चर पे नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर. द न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया. द एक्सॉन्स, द डेंड्राइट्स, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स. ओके, एक्चुअली this is the this is the nucleus. So there are two parts. One is the cell body and the other is known as an axon. If we are going to talk about the dendrites, ये processes होते हैं, we call them hair like structures. ये hair like structure होते हैं जिनको हम processes कहते हैं, they are known as dendrites. And these myelin sheath. What is a myelin sheath? Please remember that these are the Schwann cells. This is a Schwann cell. This is a Schwann cell. These are known as the Schwann cells. Schwann cells produce a myelin sheath. This is known as a myelin sheath. This myelin sheath is made up of it is made up of like a fatty layer. इससे फ़ायदा क्या होता है? It is over the axons. And what is the use of this? ये एक कुछ in some of the neurons the myelin sheath is present, in some of them the myelin sheath is not present. जिनमें myelin sheath present होती है, एक्सॉन कौन सा एरिया है? ये सारा जो आपका एरिया है, ये सारा जो एरिया है ये आपका एक्सॉन है, और ऊपर वाला जो आपका एरिया है वो आपकी जो है वो ऊपर वाला जो एरिया है वो आपकी सेल बॉडी है. इस एरिया को हम लोग कहते हैं एक्सॉन. और अब हमने क्या बोला? एक्सॉन में श्वान सेल्स होते हैं. देन वी हैव myelin sheath. The Schwann cells they produce myelin sheath, and this myelin sheath does what? In some of the neurons there is myelin sheath and some of the neurons there is no myelin sheath. myelin sheath से होता क्या है कि कंडक्ट होने वाली जो हमारी यूजुअली द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये लेके आ रहे होते हैं डायरेक्शन. सी द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स इज दिस वन. ये जो डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स है वो ये है. डेंड्राइट्स इस तरीके से
ला रहे, हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं वो ला रहे होते हैं इस तरह से इम्पल्स को, और जो एक्सॉन्स होते हैं वो इम्पल्स को बाहर लेके जा रहे होते हैं. सो यूजुअली दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, बट इन केस ऑफ द माइलिनेटेड श्वान सेल्स, माइलिनेट का मतलब क्या है, अब फैट आ गया उसके ऊपर, फैट की वजह से कंडक्शन नहीं हो रही है प्रॉपरली स्ट्रेट राइट अवे, ऐसी वाली कंडक्शन नहीं हो सकती है क्योंकि उस पर फैटी लेयर आ गई है. तो अब किस तरीके से कंडक्शन होगी हमारे पास, द कंडक्शन विल बी in the form of saltatory impulses, and these saltatory impulses are known as jumping impulses. इससे होता क्या है, ये स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स बढ़ जाती है, ऐसे इस तरह से नर्व इम्पल्स जनरेट होके जाती है इस तरीके से. और इस तरीके से क्यों होती है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास नोड्स ऑफ रेनवियर है. इन नोड्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर. क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इस एरिया में, जो एरिया मैंने आपको बताया है, ये जो एरिया है, इस एरिया में हमारे पास माइलिन शीथ नहीं है. माइलिन शीथ इस एरिया में नहीं है. ये क्या कहलाते हैं, और इन्हीं एरियाज़ को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर. और क्योंकि माइलिन शीथ नहीं है तो ऐसे कंडक्ट हो सकती है नर्व इम्पल्स जंप कर करके, लेकिन इस एरिया से नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो सकती जो स्ट्रेट तरीका था, तो वो जंप हो के कंडक्ट होती है. और वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, ये इस तरीके से नर्व इम्पल्स जा रही है, फिर इस तरीके से नर्व इम्पल्स जा रही है, फिर यहाँ से अंदर जा रही है, और फिर यहाँ से आ रही है. इस तरीके से वो सॉल्टेटरी यानी जंपिंग किस्म की नर्व इम्पल्स कहलाती है, और इससे क्या होता है, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स बढ़ जाती है.